السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میرا شوہر رات کے 2 بجتے ہی گرمی گرمی کا شور مچا کر گھر سے نکل جاتا کہ جیسے اسے بہت گرمی لگ رہی ہو، پھر صبح کے قریب واپس آتا۔ میں حیران تھی کہ اسے اتنی گرمی کیسے لگتی تھی۔ ایک رات کہ وہ سیدھے گھر سے ہی باہر چلا جاتا تھا۔ ایک رات میں نے برقع اوڑھ کر اس کا پیچھا کیا تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ وہ تو سیدھے میری شادی انجان لوگوں میں ہوئی تھی۔ میرا شوہر ایک بہت ہی خوبصورت انسان تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ میرے شوہر ایک ہسپتال میں نرسنگ کا کام کرتے تھے، لیکن بہت دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ میرا شوہر کچھ عجیب سا برتاؤ کرتا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہر کسی کو ہی گرمی محسوس ہوتی تھی، لیکن میرا شوہر روز رات کو 2 بجتے ہی گرمی گرمی کا شور مچا دیتا اور اٹھ کر گھر سے باہر نکل جاتا اور صبح فجر کے بعد واپس آتا۔ یہ سب دیکھ کے 1-2 دن تو میں نے اس چیز کو زیادہ سیریس نہیں لیا۔ کچھ انسان کو گرمی لگ بھی سکتی ہے، لیکن جب ہر روز یہ ہونے لگا تو مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ میں بار بار اپنے شوہر سے پوچھتی کہ میں بھی تو آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہوں، مجھے اتنی گرمی نہیں لگتی، تو آپ کو اتنی گرمی کیوں لگتی ہے؟ لیکن وہ آگے سے بات کو ٹال جاتا اور ایک ہی بات کرتا کہ ہر انسان کا جسم مختلف ہوتا ہے، مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے ان کی بات پر یقین کر لیا، لیکن جب اس سلسلے کو ٹائم گزر گیا تو مجھے اس سارے سلسلے سے وحشت سی ہونے لگی، کیونکہ میرا شوہر دن بہ دن عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہی شوہر جو پہلے ہر وقت پیسے کی تنگی کا رونا روتا تھا، اب ہر وقت اس کی جیب پیسوں سے بھری رہتی۔ گھر میں دولت کی ریل پیل شروع ہو گئی تھی اور مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ شوہر سے پوچھ لیا کہ اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میری پروموشن ہو گئی ہے اور اب میں نرسنگ کا ہیڈ ہوں، اس لیے میری تنخواہ پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں ان کی اس بات پر میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، اور پھر ایک دن میں برقع پہن کر ان کے ہسپتال چلی گئی تاکہ ان کی اس بات کی سچائی کو جان سکوں۔ اور جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو میرا شوہر حقیقت میں ہی نرسنگ ہیڈ تھا۔ اب اس پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہ گئی تھی، لیکن اس کا گھر میں گرمی کا شور اور رات کو 2 بجے اٹھ کر چلے جانا ابھی بھی ویسے ہی تھا، اور یہ چیز مجھے اب بہت پریشان کرنے لگی تھی، کیونکہ ہم دونوں ہی گھر ہوتے تھے، اور جب رات کو اٹھ کر گھر سے چلا جاتا تو مجھے اکیلے میں کبھی کبھی ڈر محسوس ہوتا تھا، لیکن میں مجبور تھی، کیا کر سکتی تھی؟ زندگی کچھ عجیب سی ہو چلی تھی۔ اب تو ہر روز رات کو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے انتظار رہتا کہ کب 2 بجیں گے اور کب میرا شوہر گھر میں گرمی کا شور مچاتے ہوئے گھر سے نکل جائے گا۔ میں نے گھر میں پیسہ آنے کی وجہ سے ضد کر کے اے سی بھی لگا لیا تھا، لیکن اے سی والے کمرے میں کسی انسان کو اتنی زیادہ گرمی لگنا ایک بہت ہی تعجب کی بات تھی۔ لیکن میرے شوہر کی روٹین نہ بدلی، وہ ابھی بھی روز رات کو گرمی گرمی کا شور مچاتا اور گھر سے نکل جاتا۔ مجھے اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیرت ہونے لگی کہ اے سی والے کمرے میں تو گرمی لگ ہی نہیں سکتی، اور یہ پھر بھی گرمی گرمی کا شور مچانے لگتے ہیں۔ اور پھر ایک دن مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ میرا شوہر جب صبح کے وقت واپس آیا تو اس کے کپڑے بدلے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ رات کو دوسرے کپڑے پہن کر گھر سے گیا تھا اور ابھی دوسرے کپڑے پہن کر واپس آیا ہے۔ میں نے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے کپڑے کہاں بدلے، تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرے کپڑے بدلے ہوئے نہیں ہیں۔ اس وقت وہ بات کو ٹال گیا، لیکن اس کے بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ آخر کار یہ رات کے 2 بجے ہی گرمی گرمی کا شور کیوں کرتا ہے؟ اس سے پہلے اسے گرمی محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ اور اس بات کی سچائی کو جاننے کے لیے میں نے ایک دن اپنے گھر کی ساری گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کر دی، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب گھڑی پر 2 بجتے ہی میرے شوہر نے گرمی گرمی کا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس وقت صرف 1 ہی بجا تھا، لیکن گھڑی پر 2 بج گئے تھے۔ اب تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا شوہر گرمی کا ناٹک کرتے ہیں اور ان کو گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے، اور یہ حقیقت کیا ہے یہ مجھے جاننا تھا کہ میں جب بھی شوہر سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ بات کو ٹال جاتے یا پھر مجھے آگے سے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتے کہ تمہیں کیا معلوم ہے۔ جب انسان کو گرمی لگتی ہے تو پھر اس کو ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے جسم میں آگ لگ گئی ہو۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی ایک دوست سے کیا
तो उसने कहा कि ये सब तो जादू की अलामत है, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं था। मगर मैं अपने शोहर की हालत देखकर मजबूर हो गई और अब तो मुझे भी अपने दोस्त की बात पर यकीन आने लगा था। इसलिए मैं अपने शोहर को बताए बगैर दोस्त के साथ एक पीर बाबा के आस्थाने पर चली गई। वहां जाकर जब मैंने उनको अपने शोहर के बारे में तफसील बताई तो उन्होंने कहा कि इस पर बहुत ही बड़ी चुड़ैल का साया है। मैं तो उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई कि आज के दौर में कहां से होती हैं ऐसी चीजें। लेकिन फिर जैसे जैसे पीर बाबा मुझे बताते रहे मैं वो सब करती रही और ये सारे सिलसिले में 1 महीना गुजर गया और इस तरह मैंने उन पीर की हर बात पर मनोअन अमल किया और इस सारे सिलसिले में बहुत से पैसे भी लौटा दिए। लेकिन मेरे शोहर की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी वैसे ही रात के 2 बजते ही घर से निकल जाता और मजे की बात ये थी कि मैं उनको आजमाने के लिए कभी कभी घर की घड़ियां आगे पीछे कर देती, लेकिन वो घड़ी पर 2 बजते ही चले जाते। मुझे हैरत होने लगी कि सिर्फ 2 बजे ही ऐसा क्या होता है। मैंने बहुत दफा सोचा कि शोहर का पीछा किया जाना चाहिए, लेकिन आधी रात को अकेले जाने की मुझ में हिम्मत नहीं होती थी और ये बात मैं किसी से कर भी नहीं सकती थी क्योंकि सब मुझ पर ही हंसते कि अगर शोहर को गर्मी लगती है तो इसमें हैरान होने की क्या बात है। लेकिन मैं सबको बता नहीं सकती थी कि ये सब बहुत अजीब है और मेरे शोहर बहुत अजीब बातें करने लगे हैं। मेरी जिंदगी कुछ अजीब सी हो गई थी। मुझे हैरत होती कि मैं सारा दिन घर में अकेली होती हूँ और वो जॉब से आने के बाद रात को हमेशा चले जाते हैं। उनको तो परवाह ही नहीं थी कि उनके घर में उनकी कोई बीवी भी है। मुझे तो पहले ही जादू टोने पर यकीन नहीं था, लेकिन अब इतने पैसे पीर बाबा पर लुटाने के बाद भी जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैंने तावीज और दूसरी चीजें जो कि पीर बाबा देते थे तो वो सब छोड़ दिया। लेकिन मेरी दोस्त मुझे मुसलसल डराती रहती और मैं इस डर की वजह से बहुत से पीरों फकीरों के पास गई, लेकिन लाखों रुपए लुटाने के बाद भी मेरे शोहर का मसला हल नहीं हुआ। आखिरकार मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैंने सोच लिया कि आज कुछ भी हो जाए मैं रात को जरूर अपने शोहर का पीछा करूंगी और देखूंगी कि वो कहाँ जाते हैं। मैंने रात ही अपना अबाया निकाल कर रख दिया और जैसे ही 2 बजे मेरा शोहर घर से निकला मैंने फौरन से अबाया पहना ताकि वो मुझे पहचान ना सके और उनका पीछा शुरू कर दिया। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि मेरे शोहर का रुख अपने अस्पताल की तरफ था जहां वो काम करते थे। मुझे हैरत हुई कि वो इतनी रात गए अस्पताल क्यों जा रहे हैं, लेकिन खामोशी से उनका पीछा जारी रखा और छुपते छुपाते उनके पीछे अस्पताल भी दाखिल हो गई। लेकिन वहां जाकर जो मैंने देखा उसने मुझे शदीद हैरत में मुब्तला कर दिया। मुझ में अब इतनी भी बहादुरी नहीं थी कि मैं उनको जाकर रंगे हाथों पकड़ लेती थी। तो मैं एक औरत ही मैंने आधी रात को उठकर उनका पीछा किया, लेकिन इससे ज्यादा मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं फौरन घर वापस चली गई, लेकिन अब मुझे इस राज की जुस्तजू लग गई थी। लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं किससे मदद मांगूं और कौन मेरी मदद करेगा। आखिरकार मैंने अपनी दोस्त से मशवरा मांगा और मेरी दोस्त ने कहा कि ये काम किसी भी औरत या लड़की का नहीं है। कोई भी लड़की इतनी दलेर नहीं हो सकती। तुम्हें किसी मर्द से बात करनी होगी। लेकिन अब किसी मर्द पर कैसे यकीन कर लेती या कोई मर्द मेरी बात का कैसे यकीन कर लेता। ये मामला तो उलझता ही जा रहा था और लेकिन इस सारे सिलसिले में मुझे तो यकीन हो गया कि मेरे शोहर पर जादू का कोई असर नहीं है। अब मैंने सोचा कि हो ना हो ये कोई ना कोई बीमारी है। मैंने सोचा कि सबसे पहले मेडिकल साइंस में इसके बारे में मालूम करना चाहिए। राज तो बाद में भी मालूम किया जा सकता है, लेकिन इतनी गर्मी लगने की वजह मालूम करनी चाहिए। इसलिए मैंने उनके अस्पताल की एक डॉक्टर से राब्ता किया और उनको एतमाद में लेकर सारी बात बताई और दरख्वास्त की कि मेरा नाम कहीं भी सामने नहीं आना चाहिए। इस बीमारी का कोई इलाज है तो मुझे आप बता दें। लेकिन डॉक्टर ने जो कहा उसने मुझे हैरत ज़दा कर दिया। उसने मुझे बताया कि आज तक मेडिकल साइंस में इस तरह की कोई बीमारी सामने आई ही नहीं जिसमें मखसूस वक्त में गर्मी महसूस हो रही हो। कुछ बीमारियों में मरीज को बाकी लोगों से ज्यादा गर्मी महसूस होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मरीज को किसी मखसूस वक्त में गर्मी महसूस हो। ऐसे इंसान को हर वक्त ही गर्मी महसूस होती रहती है और जो तुम्हारे शोहर को सिर्फ एक मखसूस वक्त में गर्मी महसूस होती है ये कोई बीमारी नहीं है। अब मैं और ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि मेरी दोस्त जो जादू टोनों पर बहुत यकीन रखती थी, इसलिए मेरे इनकार करने के बावजूद भी उसने मुख्तलिफ आमलों से राब्ता किया और एक आमिल जो कि हकीकत में वलीउल्लाह थे, उन्होंने साफ लफ्जों में बता दिया था कि इस बंदे पर कोई जादू नहीं है, किसी चीज का साया कुछ भी नहीं है। जब उनके ऊपर कोई साया नहीं था, जब उनको कोई बीमारी नहीं थी, तो फिर मेरे शोहर को इतनी गर्मी क्यों महसूस होती थी।
और फिर जो कुछ मैं अस्पताल में देख कर आई थी उसने मुझे हैरत ज़दा कर दिया था और ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। और एक दिन मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो मैंने अपने शोहर का राज जरूर मालूम करना है, लेकिन मुझे किसी मर्द का सहारा चाहिए था। इसलिए मैंने अपने छोटे भाई को एतमाद में लेकर सारी बात बता दी। उसने जब ये सुना तो बहुत हैरान हुआ और परेशान भी कि पहले तुमने ये बात क्यों नहीं बताई। मेरा भाई उसी दिन हमारे शहर आ गया, लेकिन मैं अपने शोहर को उसकी आमद के बारे में मतला नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एक होटल में ठहरा रहा। और जैसे ही रात के 2 बजे मेरा शोहर घर से निकला, मैं भी उसके पीछे घर से निकली और मेरा भाई गली में मेरा इंतजार कर रहा था। हम दोनों बहन भाई खामोशी से ताकुब करते रहे और अस्पताल के अहाते में दाखिल होते ही मेरे भाई ने कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन मैंने कहा कि आज मुझे भी यहाँ से आपके साथ जाना है और अपने शोहर को अपनी आंखों से देखना है। मेरा शोहर सबसे छुपते छुपाते अस्पताल के सर्द खाने की तरफ बढ़ा और यही वो चीज थी जिसने मुझे उस दिन हैरान किया था। मेरा शोहर मुर्दा खाने में क्या कर रहा है और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके पीछे मुर्दा खाने में दाखिल हो जाऊं, इसलिए मुझे मजबूरन अपने भाई को बुलाना पड़ा। अब मुझे ये मालूम करना था कि मेरा शोहर मुर्दा खाने में क्या करता है, इसलिए हम दोनों बहन भाई ने थोड़ी देर इंतजार किया और दूसरी तरफ से एक खिड़की से अंदर देखा और जो मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे शोहर एक लाश को बरहना करके उसकी चीर फाड़ कर रहा था। उसके अंदर से दिल, गुर्दे और ऐसी चीजें निकालकर एक जार में रख रहा था। अब मुझे समझ आया कि वो हमेशा गर्मी का राग अलाप कर मुर्दा खाने में क्यों आता है। वो रात इन लाशों से चीजें निकालकर शायद ब्लैक में बेचता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी और मेरी अकल माफ हो चुकी थी, लेकिन मेरे भाई ने फौरन से अपना फोन निकालकर वीडियो बना ली और हम दोनों उस वक्त वहाँ से वापिस आ गए। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये बात मैं किसको बताऊं और मुझे अपने शोहर से डर भी लगने लगा था। मैंने तो अपने भाई से जिद शुरू कर दी कि मुझे अभी ही वापस अपने घर जाना है, लेकिन उसने मुझे समझाया कि अगर ऐसा हुआ तो उसे मालूम हो जाएगा कि हम उसके राज से वाकिफ हो गए हैं, लेकिन हमें इस मुजरिम को कानून तक पहुंचाना है। दूसरे दिन सुबह मैं अपने भाई को लेकर अस्पताल की इंचार्ज के पास पहुंच गई और जाकर उसे सारी बात बताई कि तुम्हारे अस्पताल में ये सब कुछ हो रहा है। वो तो ये सब सुनकर हैरान रह गया। क्या? और जब मैंने उसे बताया कि ये सिलसिला तो पिछले 3-4 माह से चल रहा है, तो उसने परेशानी से हमारी तरफ देखा। मेरे भाई ने वो वीडियो भी उसको दिखाई और मैंने उसको बताया कि मेरा शोहर रोज रात को 2 बजे घर से निकलता है और सुबह 7 बजे वापिस आता है। उसने बताया कि 2 बजे ड्यूटी चेंज होने का वक्त होता है, इसलिए मुर्दा खाने के आसपास कोई नहीं होता और 7 बजे ड्यूटी चेंज होने का वक्त होता है, इसीलिए उस वक्त भी वहाँ पर कोई नहीं होता और वो हमेशा उसी वक्त आता और जाता है जब वहाँ कोई नहीं होता। डॉक्टर ने उसी वक्त फौरन से पुलिस को बुलाया और तमाम सबूत पुलिस को फराहम किए और इस तरह मेरे शोहर को पुलिस ने फौरन गिरफ्तार कर लिया। मैं भी इस सारे सिलसिले में अस्पताल में ही थी और मेरे शोहर को जब मालूम हुआ कि उसकी गिरफ्तारी में मेरा हाथ है तो उसने गुस्से में आकर खड़े खड़े मुझे तलाक दे दी, लेकिन मुझे उसके तलाक देने से बिल्कुल भी कोई दुख नहीं हुआ। मैं मजीद ऐसे दरिंदे और मुजरिम के साथ रहना भी नहीं चाहती थी जो कि मुर्दों पर भी रहम नहीं खाता और लाशों का गलत इस्तेमाल करता है। जब हम वापस अपने शहर आए और मेरे शोहर की फैमिली को उसकी असलियत मालूम हुई तो उन सब ने भी उससे कता ताल्लुक कर लिया। कुछ अरसे बाद अखबार के जरिए मुझे मालूम हुआ कि उसको उम्र कैद की सजा हो गई है और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरी वजह से एक मुजरिम अपने अंजाम को पहुंचा। अगर मैं हिम्मत करके उसका पीछा ना करती और खामोशी से उसकी बीमारी को बीमारी ही समझती रहती तो शायद ये सिलसिला चलता रहता। किसी न किसी हद तक मैं भी इस जुर्म में शामिल हो जाती, लेकिन सच कहते हैं जुल्म का सूरज बहुत जल्द डूब जाता है।